Welcome to the English essay class. This is the lecture in continuation with the previous discussion we had regarding paragraph writing skill. In last lecture, we talked about, last two lectures rather, we talked about what is paragraph, what are its major components, what should be the length of the paragraph, how subtle balance in the length of the paragraph must be maintained. At the same time, he stressed on the idea of writing a clear-cut concluding sentence that must be reflective of its approach as is discussed in the topic sentence. The other things we talked about were, for example, let's say, what is body of essay, what precise purpose does it serve, and next is what are various parts of that body. और इसमें हमने बात की कि there are several or potentially the four parts of the body of AC, and those include unity, coherence, development, and organization. We talked about the idea of unity, and in that topic we discussed that unity simply means every sentence must center its discussion on a single topic sentence alone. जब सारे के सारे sentences बात करेंगे एक ही जुमले के बारे में जो कि आपका मरकजी ख्याल है बेसिकली, तो आपके पैराग्राफ में यूनिटी होगी. वन. सेकेंडली, आप इस आइडिया को भी नोट कर लें कि दिस डिबेट पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट्स थ्री थिंग्स. वन, यूनिटी के लिए आपने पहली चीज़ ये फॉलो करनी है कि आप एक टॉपिक सेंटेंस में एक सब एस्पेक्ट लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे, तीन नहीं लिखेंगे, एक से ज़्यादा नहीं लिखेंगे. सेकंड, आपने बात करनी है कि एक टॉपिक सेंटेंस के एक आइडिया के ऊपर आपने महज एक पैराग्राफ ही लिखना है. आपने दो पैराग्राफ एक आइडिया के ऊपर नहीं लिखने हैं, तीन पैराग्राफ एक आइडिया के ऊपर नहीं लिखने, एक आइडिया के ऊपर एक ही पैराग्राफ लिखना होगा. तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस की थी. फॉर एग्जांपल कि देयर मस्ट नॉट बी डिस्कशन विद इन डिस्कशन, कि आपने प्रीडोमिनेंटली एक आइडिया चूज जो शुरू में किया है आप उसको फॉलो ना करें और आप एक इंटायरली डिफरेंट आइडिया डिफरेंट टेंजेंट के ऊपर डिबेट लेके चले जाएं. This should not be the case, and this must not be the case. And in case this happens, you would lose every type of leverage that you otherwise had gained from your analysis. So this is all about the unity. And in today's class, we are going to talk about the coherence as well as the development in paragraph. So what is coherence? Coherence simply means that there must be a connectivity, a link, and a logical flow, which necessarily means that the sentences in a paragraph must be arranged in a logical and natural order. इसका मतलब ये है कि भाई आपका एक जुमला दूसरे जुमले की तरफ लेके जाए, आपका दूसरा जुमला तीसरे जुमले की तरफ लेके जाए, और ये गुफ्तगू इतने फितरी अंदाज में होनी चाहिए कि रीडर को ऐसा ना लगे कि यू हैव सडनली आउट ऑफ नोवेयर jumped into the discussion. No, this should not be the case, and this must not be the case, because if this happens, this would seriously create incoherence in what you otherwise try to discuss in an open, plain and simple manner. देन कोहेरेंस हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में गाइड करता है. दिस इज़ व्हाई वी लर्न इट. फॉर एग्जांपल, कोहेरेंस हमें किसी बात के बारे में कोई आइडिया प्रोवाइड करता है, कोई हिंट प्रोवाइड करता है कि इस बात के बाद अगली बात क्या है. फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस का साथ वो ब्रिज करता है, कनेक्टिविटी का रोल प्ले करता है. मिसाल हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि वेल बिसाइड्स let's say effectiveness of military courts in terms of creating deterrence, they are also prone to create an environment where there will be certainty as well as the severity of punishment. अब ये पहले जुमले के साथ ये जो है वो कनेक्टेड था. फॉर एग्जांपल, अगर पहला जुमला हम डिटेल मैनर में लिखें कि मिलिट्री कोर्ट्स कैन nib the evil of terrorism, they are such a courts which have tendency to create deterrence in regarding crime and punishment in society. Besides doing so, yeah, besides this,
they are also able to ensure the severity as well as the certainty of punishment which is otherwise required in the criminal justice system in order to uphold justice and fair play. अब आपने ये नोट कर लिया कि your every sentence is basically connected with the other sentence. अब आपने एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ कनेक्ट किया, एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट किया, एक पैराग्राफ को भी आप ब्रॉडर जोन में देखेंगे तो आप दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज द प्रिसाइज फंक्शन ऑफ द कोहेरेंस, कि आपकी बातें एक दूसरे के साथ इस मैनर में जुड़ी हुई होनी चाहिए. कोई भी बात ऐसी बात नहीं लगनी चाहिए कि it is just arrived out of nowhere, it is just arrived out of blue. No, your everything must be connected to every other thing in such a manner that things may become very easy to comprehend. Then we have got coherence of two different types. On one hand, we have logical coherence, and on the other hand, we have got verbal coherence. What do we mean by logical coherence? Logical coherence simply means that all and the complete analysis must focus on one single sub aspect on that particular idea under discussion. यानी कि आपने जो यूनिटी वाले पैराग्राफ लिखे हैं तो वी कैन से दैट देयर इज नेसेसरली अ कोहेरेंस. हमने मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ ले लेना है कि फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पांसिबल फॉर टेररिस्ट वायलेंस इन कंट्री. Different terrorist and different hostile agencies have got conflicting geopolitical, geoeconomic, and geostrategic interest in the region, and that is why they pursue every type of policy supporting state and non-state actors to weaken a state from within. And they often go on employing the means of the terrorist violence by supporting, financing, monitoring, and actually helping, arming, financing, even to some extent officering all those non-state actors. For example, Pakistan faces the threat of terrorism from Baloch Liberation Army, from, let's say, Tehreek-e-Taliban Pakistan, from Islamic State of Iraq and Syria. And this goes without any doubt that all these agencies are funded, supported, and basically provided technical support by Research and Wing Analysis of India, which is the spy agency of India. अब यहाँ पर आपने ये एनालिसिस की है, फिर आप आगे चल के बात करें. One case in this point is the arrest of the Indian serving naval officer Kulbhushan Yadav. He was one such individual who have been arrested and to have confessed of all that has gone wrong in Balochistan, in Karachi, in FATA and Gilgit-Baltistan regarding the terrorist violence in Pakistan at large. This shows that different hostile foreign agencies also share a portion of blame when it comes to, for example, when it comes to, let's say, formatting terrorist violence in a particular country. Are you getting this point? कि आपने जो बात करनी है वो इस पर्टिकुलर मैनर में जो है वो कर लेनी है. एंड इन दिस मैनर इट मीन्स यू हैव मेंटेन्ड यूनिटी, यू हैव नेसेसरली मेंटेन्ड लॉजिकल कोहेरेंस. यानी कि अगर आपने यूनिटी मेंटेन कर ली है तो देयर इज इनहेरेंटली समथिंग दैट इज सुपरबली अचीव्ड एंड दैट इज द लॉजिकल कोहेरेंस. At the same time, आप ये ध्यान में रख लें कि there is other type of this coherence as well, और वो है आपका verbal coherence. Verbal coherence क्या है कि जैसे आपके गुफ्तगू एक ही आइडिया के ऊपर सेंटर्ड थी, अब आपके अल्फाज भी उसी एक आइडिया के इन एंड अराउंड जो है वो चलते फिरे. अब वर्बल कोहेरेंस किस तरीके से अचीव होता है, उसके लिए ये 3-4 मेजर चीजें आपने याद कर लेंगे. 1, वर्बल कोहेरेंस आप अचीव कर लेते हैं ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस के साथ. मिसाल के तौर पर जब आप कंक्लूडिंग सेंटेंस से पहले हेंस, देयरफॉर, thus, this shows that, this indicates that, ये सारे के सारे ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं
तो necessarily you are establishing, you are creating verbal coherence. One. Secondly, हम वैसे भी transitional words इस्तेमाल करते हैं in addition to this, besides this, on one hand, on the other hand, but besides this, etc. ये तमाम तो जो अल्फाज हैं ये हमारे ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है और वो मकसद ये होता है कि किसी तरीके से क्या अचीव की जाए, वर्बल कोहेरेंस अचीव किया जाए। किसी तरीके से क्या अचीव किया जाए, वर्बल कोहेरेंस अचीव किया जाए। एट द सेम टाइम आप वर्बल कोहेरेंस के लिए प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि मिलिट्री कोड्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट मीन्स टू डील विद द इशू ऑफ टेररिज्म। दे आर सच कोड्स। अब ये जो आपने वर्ड लिखा है दे, कि ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? डेफिनेटली दिस इज रिफ्लेक्टिंग या दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स जो आपका आइडिया है मिलिट्री कोड्स वाला। अगेन माय पॉइंट रिमेन्स सेम एंड माय पॉइंट रिमेन्स इंटैक्ट कि आपका जो वर्बल कोहेरेंस है दैट बेसिकली हेल्प्स यू आउट इन एस्टैब्लिशिंग a focus on the similar vocabulary or basically the major keyword in your discussion. थर्ड ये कि यू कैन यूज synonyms। मिसाल आपने एक बार अगर मिलिट्री कोड्स का आइडिया इस्तेमाल वर्ड इस्तेमाल कर लिया है and you next time want to refer to this particular thing, you can talk about any synonym. You can say, for example, कि भाई इसको कोई synonym आप देखें कि special codes under established under the auspices of military. You can talk about this in this particular manner, and this would have an added value to the overall debate that is going to be discussed. तो सैनोनिम हो सकते हैं काफ़ी सारे। अब सैनोनिम्स नहीं होते जिन अल्फाज के, उनके लिए फिर आपके लिए चौथी चीज़ है जो कि आपने ध्यान में रखनी है, विच इज़ रिपीट और रीस्टेट की वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स। आपने कोई जो मेजर वर्ड है वो इस्तेमाल कर लेना है, उसको जो है वो आपने दोहरा देना है। उसकी मिसाल हमें कहाँ पे मिलती है? उसकी मिसाल हमें मिलती है सबसे पहले हम उसकी मिसाल लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का हमें अपेरेंटली कोई अल्टरनेट सैनोनिम नहीं मिल रहा, मुतबादिल लफ्ज़ हमें नहीं मिल रहा। व्हाट वी वुड बी डूइंग इन दिस केस सिनेरियो, व्हाट वी वुड बी एक्चुअली सेइंग इन दिस सिनेरियो। हम इस पूरे सिनेरियो में ये बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम रिपीट करें। एट टाइम्स हम अगर ये भी बात कर लें कि जनाब हमें लेट्स से ग्लोबलाइजेशन है, इवन पॉपुलिज्म है, ये जो मेजर कीवर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स कभी कभार नहीं भी आ रहे होते। यस, इवन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी को तो फिर भी हम रिप्लेस कर सकते हैं कि रूल ऑफ द पीपल, जनरल विल, द पॉपुलर सॉवरेनिटी या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, या पीपल ड्रिवन गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, पीपल लेड, पीपल ओन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एटसेट्रा। लेकिन in any case, if you are unable to find a synonym of a particular word, you must think of any keyword like its repetition of rather keyword. Repeat or restate that particular keyword and you will be able to achieve the whole. So recapitulation अगर हम कर लें इस पूरी गुफ्तगू की, तो we were talking about, let's say, the idea of coherence. Coherence is an integral part of your overall discussion when it comes to writing a paragraph. A paragraph without coherence would not be a worth reading paragraph. You must remember that, one. The second thing that you need to take into account is कि भाई आपका जो भी पैराग्राफ होगा उसमें आपने कोहेरेंस दोनों तरीकों का जो है वो मेंटेन करना है, लॉजिकल कोहेरेंस एज वेल एज वर्बल कोहेरेंस। लॉजिकल कोहेरेंस तभी अचीव हो जाता है जब आपने यूनिटी अचीव कर ली होती है, बट वर्बल कोहेरेंस अचीव करने के लिए आपने फोकस करना होता है सिनोनिम के ऊपर, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, या रिपीटेशन या restatement of the keyword. You can write a paragraph
having both of the features, unity and coherence, and this would be later assessed as a home run. Welcome to Thank you the so much essay for it. session, and in today's class, we are going to talk about the development in paragraph. So, what is development? We have one fundamental question: how to justify something that we have talked about in topic sentence, how to prove something beyond reasonable doubt, how to justify, explain, or evaluate an idea, what is analysis, and how it must be done. This discussion would not only be helpful in writing paragraph in an effective manner, but it would also be helpful for the other papers as well, because this is going to help you out as as to what is required when you want to explain, justify, or prove your any point. You need to focus on this. Here we go. So the development simply means that how to justify, how to substantiate, and how to explain a topic sentence. हमने ये जो जुमला लिख लिया है, poverty leads to terrorism. यहाँ पर ये महज एक क्लेम है. Topic sentence is not more than any claim, and the claim needs to be justified. अगर वो justified नहीं होगी, तब तक वो बात beyond reasonable doubt आप prove नहीं कर सकते. So how to prove that? कभी कभार ये भी होता है कि we have very beautiful ideas, but once they are under explained, they are least explained, their impact is basically diluted. उनका impact जो है वो खत्म हो जाता है. And that is why I just insist that an idea underdeveloped actually dilutes the impact of even a stronger topic sentence. मिसाल के तौर पर हम इसकी अगर बात कर लें तो this is very much evident and this is very much clear. और वो कैसे clear है आपने देखना है. Overdeveloped state structure has eroded the democratic structures in Pakistan. Now we have a very beautiful topic sentence. लेकिन अगर हम इसको सही तौर पर डिस्कस ही नहीं कर सकें तो this topic sentence or this particular idea is of no mortal use. आप इसे इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? सिर्फ टॉपिक सेंटेंस लिखने से इफेक्टिव नहीं बन जाता. Topic sentence becomes effective only after it is analyzed in an effective manner. तो आपके दो सवाल इस पुस्तकों से हल होंगे. One, how to justify, and the other, to what extent you must justify. कि क्या कैसे जस्टिफाई करना है और कितनी हद तक आपने जस्टिफाई करना है. कि कहीं ऐसा तो ना हो कि आप एक अनलिमिटेड या अनएंडिंग गुफ्तगू पे जो है वो वेब में चले जाए. No, you should not be doing. Okay, so next thing that you need to take into account is कि we have multiple tools of development. हम मुख्तलिफ तरीके कार से जो है वो चीज़ों को justify कर सकते हैं. The first in the row is rational. रैशनल का बुनियादी तौर पर मकसद होता है कि आपने जो दो की टर्म्स टॉपिक में इस्तेमाल की हैं आप उनके दरमियान को रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें. मसलन आपने कहा है पॉवर्टी लीड्स टू टेररिज्म. गुर्बत जो है वो दहशतगर्दी की तरफ लेके जाती है. आपका अगला जुमला क्या होना चाहिए? दिस टेक्निक गाइड्स यू. और ये टेक्निक आपको बताती है कि यू मस्ट आस्क योरसेल्व्स अ क्वेश्चन दैट इज हाउ दिस हैपेंस. Once we say democracy and illiteracy cannot go hand in hand, the question is how. Once we say self-isolation is key to defeat COVID-19, how this happens. Foreign agencies are the resonator behind increasing cases of terrorist violence. How this happens. The last but not the least जो कि आप कह सकते हैं बात वो अगेन यही है कि well, जब हम बात करते हैं कि military courts can nip the evil of terrorism in bud, the question still remains how this happens. ये कैसे होता है और ये कैसे नहीं है. So you can justify your topic sentence by simply asking first question okay, how this happens, and your rational process will trigger, and on this in an attempt to link these two
major points in your topic sentence, you must actually do one thing, and that और वो ये है कि आप उन दोनों चीज़ों को रिलेट कर लें। और वो आप किस तरीके से करेंगे? जैसे poverty leads to terrorism. As in its nature, poverty is such a state in which an individual is unable to fulfill its basic needs. And in this state, one is more prone to fall into the trap of any organization, enemy state or non-state actors, and can work for their ulterior motives. अब आपने यहाँ पे बेसिकली लिंक इस्टेब्लिश कर लिया पावर्टी का टेररिज्म के साथ। एक थोड़ा सा एक कमज़ोर लिंक ही है, लेकिन आपने समझ लिया कि दोनों चीज़ों को जो है वो जोड़ना किस तरीके कार से है। So what is this? Poverty leads to terrorism. This simply means that you need to underline the relationship between these two terms. क्लियर हो गया? वन। उसके बाद फिर आप बेसिकली आगे जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। उसके लिए आप ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यू कैन यूज फैक्ट्स, और फैक्चुअल साइड ऑफ द डिबेट भी स्ट्रांग होनी चाहिए फॉर ए स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड इफेक्टिव एनालिसिस। अच्छा, फिर आपके जो फैक्ट्स हैं उनके लिए चीज़ें क्या होनी चाहिए कि दे मस्ट बी करंट। अगर आप कह रहे हैं कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान आर डिक्लाइनिंग, तो आप बात कर लें 2004-5 की, तो कितने भी ज़बरदस्त फैक्ट्स हों वो आपके काबिल कबूल नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नॉट करंट। आपके फैक्ट्स कम अज़ कम एक साल मतलब पुराने होने चाहिए, एक कम अज़ कम जो है वो उस साल के होने चाहिए जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतने पुराने होने चाहिए कि चलें यार आप 1 या 1.5 साल के। दे मस्ट बी रेलेवेंट। मसलन आप कह रहे हैं कि जी टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान का बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हुआ है, और आप फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यार टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान ने 70,000 जो लोग हैं वो बेसिकली गंवाए हैं, ये कोई इतना कोलेटरल डैमेज हुआ है हमारा, या इतने लोग हमारे जो है वो वॉर एंड टेरर की वजह से कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान तो नहीं हुए, कुर्बान वो होता है जो कि विलिंगली हो। ये तो लोगों ने कभी नहीं कहा था कि चलें यार तुम खुश रहो हम फिर चल रहे हैं, देख नाल मगर देख मगर प्यार, इस तरह से तो लोगों ने नहीं कहा था। एंड दे वर बेसिकली बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स एंड मेनी अदर फैक्टर्स। लिहाजा अब आपने जो फैक्ट्स ये दिए हैं, these are not relevant. You should otherwise have quoted, let's say, the World Economic Forum report on Pakistan's economy says that Pakistan has lost about $123 billion in economy because of Pakistan's ongoing war on terror. आप ये बातें कर सकते हैं। It must be authentic. And what makes data authentic? This is first question. Look at two statements. One statement is Pakistan houses more than 200 million people. And then there is another statement. According to Pakistan Bureau of Statistics, Pakistan houses more than 207 million people. Now, this statement is particularly authentic. Authentic in what sense? Authentic in a sense कि यार इस पर्टिकुलर जुमले में आपने जो चीज़ की है वो यही है कि आपने जो सोर्स ऑफ द डेटा है वो मेंशन किया है। Without actually mentioning the source of the data, I really don't think that you would be able to justify your point. For this, you can have the names, dates and numbers, और वो correct होने चाहिए, झूठी information आपने नहीं quote करनी। There are candidates who actually ask us, हम कोई वैसे ही लिख लें according to foreign affairs। Look, you try not to mock the intelligence of the examiner. We live in the world of technology where it is easy to actually look into the facts. बड़ा आसान होता है कि facts को जो है वो हम cross check करें। And what happens if during cross checking के बाद हमें पता चले कि यार आपने जो facts लिखे थे वो तो गलत थे। So this would definitely erode every type of stature that you had otherwise made. आप सोर्सेस के लिए ऐसा कर सकते हैं कि यूं कर लें कि डेमोक्रेसी के ऊपर सारी रिपोर्ट्स एक दिन इकट्ठी कर लें, टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट्स इकट्ठी कर लें, या फिर आप ऐसा कर लें कि इनके लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर
अखबार में से जो अपने फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट करने। द मोर यू डू थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर, द इजियर इट वुड बी फॉर यू टू कलेक्ट दी फैक्ट्स। कोटेशन एक और तरीका है, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए यूं कर सकते हैं कि वंस यू से दैट वॉर ऑन टेरर कैन नॉट हेल्प अस विनिंग, कैन नॉट हेल्प अस डिफीटिंग टेररिज्म। और फिर आप जो भी रैशनल डेवलप करें, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दें या ना दें, थोड़ी सी एनालिसिस करने के बाद फ़ौरन लिख लें कि अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या एन इंडिविजुअल जिसने टेररिज्म के ऊपर बहुत सारा काम किया, एन एक्सपर्ट इन दी studies related to terrorism once said, how can there be a war on terror when war itself is a terror? Up in this particular scenario, the quotation actually changed the apparatus. A linguist भी आप कह सकते हैं, जो भी आपका इंडिविजुअल, जो भी आप इंडिविजुअल जो है वो लिखें, आप एक वर्ड में उसे इंट्रोड्यूस भी करा लें। Who is this individual and what this individual is basically up to? ये जो फर्द है ये कौन है और उसका जो स्टेचर है वो क्या है और ये बेसिकली क्या कहना चाहता है। So again, you can use basically the quotations and they can be of utmost importance and they can be very, very much helpful. अब quotation भी जरूरी नहीं कि दो दो तीन तीन आप एक एक पैराग्राफ में लिखेंगे, एक हो बस वो थोड़ी सी एक्सप्लेन हो, ये ज्यादा बेहतर है उन दो या तीन quotation से जो कि आपने लिखी हो बट आपने एक्सप्लेन ना की. This is something that you need to emphasize, that you need to stress. कोटेशंस के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एरिया वाइज 20 कोटेशंस कलेक्ट करें. आपने नोट किया है कि अक्सर जो हमारे एस्पायरेंट्स की है उनकी यही कोटेशंस रहती हैं. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. कुड यू इमेजिन कि यार इतनी सारी कोटेशंस डेमोक्रेसी के ऊपर मौजूद हैं एंड यू जस्ट फोकस ऑन वन कोटेशन as if there is dearth of quotations. No, you should not be. ऐसा करना आपके लिए बहुत नुकसानकार हो सकता है. Rather than falling into this particular trap, you must be taking a bold step of actually correcting this strategy by collecting a lot of quotations on a particular theme. Last but not the least, जो चीज आप ले सकते हैं, that is the example. You can use examples to translate your claim into reality. और वो आप कैसे कर सकते हैं? You can look at this. जब हम कहते हैं कि military courts can nip the evil of terrorism in bud, this is just a claim. But हम जब कहते हैं कि अमेरिका ने 9/11 के इवेंट के बाद पैट्रियट एक्ट के तहत 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, तो अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर 65% डिक्लाइन आया टेररिस्ट वायलेंस में. अब ये जो आपने एग्जाम्पल कोट किया है ना कि यार देखें अमेरिका ने बनाई थी, वहां पे इफेक्टिव थी. अब नाउ यू हैव एक्चुअली ट्रांसलेटेड दिस क्लेम इनटू रियलिटी एंड यू हैव क्रिएटेड एन इंप्रेशन कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन व्हेन. कोई ऐसी चीज के बारे में आप बात नहीं कर रहे जो कि खिला में एग्जिस्ट कर रही है. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. आप ऐसी बात के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली हकीकी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वर्थ नोटिंग. एग्जाम्पल्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि वंस यू हैव मोर देन वन एग्जाम्पल, कभी कभार होता है ना बहुत सारी नॉलेज होती है एस्पायरेंट्स को कि यार मिलिट्री कोर्ट्स में 26 मिसालें हैं हमारे पास, जैसे यूके में जुलाई 7 अटैक्स के बाद, स्पेन में मैड्रिड बॉम्बिंग्स के बाद, फ्रांस में नीस अटैक्स के बाद, या इवन हम देखें कि अमेरिका में पेट्रो अटैक के 9/11 के बाद, श्रीलंका में तमिल सिविल वॉर के बाद, या पाकिस्तान में पीएच अटैक के बाद. नाउ यू हैव गॉट अ plenty of examples. So what you need to do is, once you have a lot of examples, just quote first example in detail और बाकी examples को just आप mention कर. मसलन आप जो अमेरिका वाली बात है उससे आप थोड़ा सा डिटेल में बयान कर लें और फिर बाकी एग्जांपल जस्ट उसके साथ अटैच कर लें और उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इन दिस मैनर you would be able to recognize one thing, and that is your analysis would be relatively different from other people.
कोट फेट एग्जाम्पल के लिए ये है कि आप इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से एक जगह पे तीनों भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि ये तीनों। अब दिस इज टू बी गवर्न्ड विद बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स। कभी कभार हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होता है तो हम किसी पैराग्राफ में तीनों भी कर लेते हैं। कभी कभार हमारे पास नॉलेज जो है वो सतही होता है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, कभी कोट इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी फैक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड इन दिस मैनर वी क्रिएट बेसिकली अ सटल बैलेंस ऑफ ऑल द नॉलेज, पूल ऑफ नॉलेज दैट वी अदरवाइज हैव। और फिर हम चाहते हैं कि यार हमारे तमाम तर पैराग्राफ मैच्योर, डेवलप होने चाहिए। Are we clear on this? And this is all about the development of paragraph.